Hello everyone. The topic that we are going to discuss today is role of lawyers in animal rights legislation. First off, we'll begin with the introduction. So what are animal rights? Animal rights जो है ये assert करते हैं कि animals just like human beings they have interests that cannot be sacrificed or traded away merely for the benefit of others. So just like humans के कुछ basic rights होते हैं जिन्हें हम human rights कह देते हैं, उसी तरीके से एनिमल्स के भी कुछ राइट्स जो हैं वो होने चाहिए और एग्जिस्ट करते हैं, उन्हें हम एनिमल राइट्स कहते हैं। तो एनिमल राइट्स लेजिस्लेशन क्या है? एनिमल राइट लेजिस्लेशंस ऐसे रूल्स, रेगुलेशंस और लॉज होते हैं which are aimed at protecting the interests and welfare of animals. It involves a wide range of legal aspects from establishing standards for humane treatment to preventing cruelty and exploitation. So ये जो legislations होती हैं ये एक बहुत वास्ट एरिया जो है कवर करती हैं which includes कि किस तरीके से एनिमल्स को जो है एक ह्यूमेन ट्रीटमेंट जो है मिलनी चाहिए और किस तरीके से हम एनिमल क्रूएल्टी और एक्सप्लॉयटेशन को जो है प्रिवेंट कर सकते हैं। इस फील्ड को पढ़ना या समझना इज इम्पोर्टेंट। व्हाई? सो दैट हर इंसान के मन में ये चीज जो है वो आए कि ऑल द क्रीचर्स आर एंटिटीज क्रिएटेड बाय गॉड एंड हर क्रीचर को एक बेसिक ट्रीटमेंट जो है वो मिलना जरूरी है। Then we see that millions of animals are killed globally every year, either for food or for medical experiments. Despite the existence of comprehensive laws and policies, animal abuse and cruelty are rampant in India. So बहुत सारे animals को हर साल जो है they are subjected to cruelty and exploitation. चाहे हमारे पास जो है काफ़ी legislations हैं, laws हैं relating to animal welfare and animal cruelty, still animal abuse और cruelty जो है that is rampant in India. वो बहुत ज़्यादा तादाद में इंडिया में हमें फिर भी animal cruelty के cases मिलते हैं। Advocates of animal rights का क्या रोल है फिर in advocates का? They argue that animals should not be used as food, clothing, entertainment or for experimentation. So advocates जो हैं वो हेल्प करते हैं ये प्रमोट करने में कि एनिमल्स का जो है इनह्यूमन ट्रीटमेंट जो है नहीं होना चाहिए. दे शुड नॉट बी यूज्ड एज फूड, क्लोथिंग, एंटरटेनमेंट और फॉर एक्सपेरिमेंटेशन पर्पसेस. Next, we are going to discuss legal landscape around animal rights in India. So और लीगली हमारे पास क्या क्या प्रोविजंस जो हैं इंडिया में अवेलेबल हैं सराउंडिंग एनिमल राइट्स, हम सबसे पहले जो है इससे एक बार गो थ्रू करेंगे. सो फर्स्ट प्रोविजन जो इंडिया में हमारे पास है दैट इज अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. The Constitution of India, the supreme law of the land, it acknowledges the sanctity of animal life and prescribes the protection and treatment of animals with dignity as a fundamental duty of its citizens. So हमारे Indian Constitution के accordingly, it is the fundamental duty of the citizens to protect and treat the animals with dignity. Article 51 Clause G जो Constitution का है, it provides that the citizens are obliged to preserve and improve the environment, including forests, lakes, rivers, and wildlife, and to have compassion for living creatures. इसके अलावा हमारे पास और भी काफ़ी legislations हैं like the Prevention of Cruelty Act 1960, the Wildlife Protection Act of 1972. ये जो laws हैं they provide a legal framework for wildlife protection and prescribes punishments for acts of cruelty against animals. इन acts के अलावा हमारे पास Indian Penal Code में भी कुछ provisions हैं like section 428 and 429
which punishes all acts of cruelty such as killing, poisoning, maiming or rendering useless animals. फर्दरमोर हमारे पास कुछ केस लॉज भी हैं रिलेटेड टू एनिमल क्रुएल्टी एंड वो जो हैं फर्स्ट one of them is PETA versus Union of India. The Bombay High Court in this case ruled that any film using an animal must obtain a no objection certificate from the Animal Welfare Board of India. So इस केस में बॉम्बे हाई कोर्ट had ruled कि कोई भी फिल्म जिसमें किसी भी एनिमल को किसी भी तरीके से अगर वो यूज करना चाहते हैं तो उससे पहले उनको एक एनओसी जो है वो एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया जो कि एक गवर्नमेंट बॉडी है उससे जो है वो एनओसी उनको पहले लेना पड़ेगा। और पीटा जो है आई बिलीव सबको ही पता होगा, इट स्टैंड्स फॉर पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स। ये बेसिकली अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशन है बट इसका मतलब पीटा इंडिया भी एक मुंबई बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। इट इज इंडियाज एनिमल राइट्स ऑर्गेनाइजेशन इंडिया में जो है एंड इट फाइट्स फॉर एनिमल राइट्स बेसिकली। देन सेकंड केस जो है हमारे पास दैट इज एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया वर्सेस ए नागराजा। So in this case, the court extended the right of dignity to animals and banned practices like jallikattu and bullock cart racing that caused harm to animals. तो इस केस में कोर्ट ने जो राइट टू डिग्निटी है वो सिर्फ उन्होंने कहा था कि सिर्फ ह्यूमंस को ही नहीं बट ये राइट जो है एनिमल्स को भी एक्सटेंड होता है कि वो अपनी लाइफ एक डिग्निफाइड तरीके से जी सकें। एंड फर्दर उन्होंने कोई भी ऐसी प्रैक्टिसेस विच कॉजेज हार्म टू एनिमल्स उनको बैन किया। Then next that we'll discuss importance of legal representation for animals. तो अभी जैसे हमने लास्ट स्लाइड में डिस्कस किया कि हमारे पास ऐसे रूल्स रेगुलेशंस लॉज जो हैं वो हैं जो कि एनिमल क्रुएलिटी से डील करते हैं दैट हेल्प प्रिवेंटिंग क्रुएलिटी अगेंस्ट एनिमल्स। सो व्हाई डू वी नीड लीगल रिप्रेजेंटेशन फॉर एनिमल्स, अभी हम वो डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट जो पॉइंट है इसमें आता है दैट इज एक्सेस टू जस्टिस। Legal representation ensures that animals have a voice in the legal system and are not overlooked in cases that affect their well-being. अभी जैसे humans के केस में if the right of a human being is infringed upon, so humans they have a voice, they have the knowledge कि वो जाके अपना जो है infringement के against कोर्ट्स में जा सकते हैं। उन्हें पता है किस ऑर्गेनाइजेशन में जाना है, अगर नहीं भी पता है then they can consult appropriate people in that case as well. But animals did not have a voice, को नॉलेज नहीं होता है या कुछ भी ऐसा नहीं है उनके पास, तो इसलिए जो है they need a human representation. Second of all, we have accountability. Having legal advocates for animals will hold individuals and organizations accountable for their treatment of animals. तो अगर कोई एडवोकेट होगा एनिमल्स का तो वो जो है उन बेजुबानों के बिहाफ पर उन इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशंस को अकाउंटेबल होल्ड कर सकते हैं who are responsible for the ill treatment of those animals. Thirdly, it will set legal precedents. तो जैसे जैसे lawyers जो हैं if they'll take up cases relating to animal welfare तो इससे क्या होगा कि लीगल प्रेसिडेंट्स जो है सेट हो जाएंगे दैट विल हेल्प अदर्स इन द फ्यूचर एज वेल। देन नेक्स्ट वी विल डिस्कस लीगल चैलेंजेस फेस्ड इन एनिमल राइट्स केसेस। तो क्या क्या चैलेंजेस जो हैं जो ज़्यादातर हम एनिमल राइट्स के केसेस में फेस करते हैं। फर्स्ट इज लैक ऑफ लीगल प्रेसिडेंट्स। एनिमल राइट्स केसेस में ऑफ्टन ये चैलेंज जो है देखा जाता है दैट देयर आर लिमिटेड लीगल प्रेसिडेंट्स
जिसकी वजह से इट इज़ डिफिकल्ट टू आर्ग्यू इन फेवर ऑफ एनिमल प्रोटेक्शन। सो ज़्यादा ऐसे केस लॉज जो हैं एग्जिस्ट ही नहीं करते जिनमें एनिमल राइट्स की बात की हो, so it becomes a challenge. Then secondly, we have resource limitations. Due to resource constraints, pursuing animal rights can be financially and logistically challenging for legal team. तो resource limitation से हमारा मतलब है कि there is lack of, जैसे animal rights cases में there is a lack of funding and there is a lack of people that stand against animal cruelty and the people who support animal rights। तो इन चीज़ों की कमी होने की वजह से जो है हम एनिमल राइट्स केसेस को उस तरीके से एडवोकेट नहीं कर पाते हैं जिस प्लेटफॉर्म पर लाके इसको एडवोकेट करना चाहिए। देन नेक्स्ट वी हैव ऑपोजिशन फ्रॉम इंडस्ट्रीज। The animal agriculture and entertainment industries often oppose animal rights cases, leading to intense legal opposition. तो जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं रिलेटिंग टू एग्रीकल्चर एंड एनिमल एंटरटेनमेंट, दे ऑफन अपोज दीज केसेस, जिसकी वजह से एक लीगल चैलेंज जो है एनिमल राइट्स केसेस में हमें फेस करना पड़ता है। नेक्स्ट इज रोल ऑफ लॉयर्स इन ड्राफ्टिंग एंड एडवोकेटिंग फॉर एनिमल राइट्स लॉज। तो जो लॉयर्स हैं वो किस तरह से जो है एक रोल जो है प्ले कर सकते हैं इन एनिमल राइट्स एडवोकेसी। सो फर्स्ट पॉइंट जो हम इसमें डिस्कस करेंगे दैट इज रिसर्च एंड ड्राफ्टिंग। सो लॉयर्स प्ले अ क्रूशियल रोल इन रिसर्चिंग, ड्राफ्टिंग एंड प्रपोजिंग एनिमल राइट्स लेजिस्लेशन टू एड्रेस गैप्स इन एग्जिस्टिंग लॉज एंड रेगुलेशंस। सो लॉयर्स जो हैं वो अपनी रिसर्च स्किल्स के थ्रू, अपनी ड्राफ्टिंग स्किल्स के थ्रू, और क्योंकि उनके पास एक वॉइस है टू प्रपोज फॉर एनिमल राइट्स लेजिस्लेशन, तो इसे यूज करके जो है एग्जिस्टिंग लॉज विच आर रिलेटेड टू एनिमल राइट्स, उनका और आज के समय में जिस तरीके से उनके साथ जो है इल ट्रीटमेंट हो रहा है, उस जो गैप को वो है रिड्यूस करने में हेल्प कर सकते हैं। सेकेंडली, एडवोकेसी एंड लॉबिंग। Lawyers work with animal rights organizations to advocate for new legislations and lobby for protection of animals in various legal forums. So lawyers जो हैं अपनी कैंपेनिंग और प्रमोशंस के थ्रू जो है एनिमल राइट्स की एडवोकेसी कर सकते हैं in collaboration with certain animal rights organizations. Then we have legal consultation. They provide legal expertise to lawmakers and animal rights organizations, offering insights on effective legal strategies and potential challenges. So because lawyers जो हैं उनसे बेहतर लॉ को समझना किसी और के लिए पॉसिबल नहीं है, एंड बिकॉज उनके पास वो लीगल नॉलेज है, तो वो लीगल नॉलेज आगे किसी को भी इम्पार्ट करके जो है insights they can offer on effective legal strategies relating to animal welfare and the potential challenges which animal rights laws might face, उसके बारे में जो है उन्हें इत्तला कर सकते हैं। The next we have impact of lawyers involvement in animal welfare. So किस तरह से अगर lawyers जो हैं एनिमल राइट्स केसेस को जो है एडवोकेट करेंगे, तो वो किस तरह से जो है इम्पैक्ट करेगा, उसका इम्पैक्ट क्या होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेसिडेंट सेट हो जाएंगे। Successful cases have set legal precedents that have led to stronger protection and improved welfare for animals. So precedent set होने से जो है आगे चलकर कोई भी एनिमल राइट्स का केस जो है फाइट करना वो इजी हो जाता है बिकॉज ऑफ सक्सेसफुल केसेस जो कि स्ट्रॉन्गर प्रोटेक्शन और इम्प्रूव्ड वेलफेयर जो है देन प्रोवाइड कर सकते हैं इन दीज केसेस। सेकेंडली, पब्लिक अवेयरनेस। तो ये केसेस से पब्लिक अवेयरनेस जो है वो आती है
पब्लिक को जो है एनिमल राइट्स के बारे में एंड द नीड फॉर लीगल इंटरवेंशन इस सब चीज़ों के बारे में पता चलता है, जिससे जो है गवर्नमेंट पर भी इफेक्ट पड़ेगा कि वो इफेक्टिव लेजिस्लेशंस और रूल्स जो हैं इसके रिगार्डिंग जो है इम्प्लीमेंट करें। देन पॉलिसी चेंजेस, तो सक्सेसफुल केसेस अगर एडवोकेट्स जो है अगर जीतते हैं इन एनिमल राइट्स के रिलेटेड, सो इससे जो है लेजिस्लेटिव चेंजेस जो हैं वो आएंगे that would positively impact the lives of animals. Then collaborations between lawyers and animal rights organizations. So collaboration involving joint efforts to advocate for animal-friendly policies and legislations at local, national and international levels to help enhance the understanding of animal rights and laws and their implications. So lawyers और animal rights organizations जो हैं वो मिलकर जो है ऐसे एफर्ट्स जो डाल सकते हैं to frame animal friendly policies and legislations at every level, जिससे जो है एनिमल वेलफेयर के बारे में जो अंडरस्टैंडिंग है वो जितनी हो सके वो बढ़ाई जा सके। And lastly, we have the conclusion. Animal rights legislations and legal representation, they are vital elements for promoting compassion and justice amongst all living beings. एनिमल राइट्स लेजिस्लेशंस जो हैं वो बहुत ज़रूरी हैं ताकि वो सेंस ऑफ कंपैशन जो है वो प्रमोटेड रहे in all living beings. Then, with the continuous efforts of lawyers, advocates, and organizations in addressing all the legal challenges in framing better policies and advancing the cause of animal welfare, reflects the ongoing commitment to creating a more compassionate world. As we look to the future, the collaboration between legal professionals, policymakers, and advocates holds the potential to drive profound advancements in animal rights legislation and secure a better future for animals. So, advocates, उनकी collaboration with policymakers and other animal rights organizations, इनकी collaboration से जो है एनिमल्स का जो फ्यूचर है वो और सिक्योर हो सकता है, और इसके लिए जो है हमें कंटिन्यूस मेहनत करनी पड़ेगी so that we could create a more compassionate and an ethical world जहाँ हर क्रिएचर के पास जो है राइट टू डिग्निटी हो, उनका कोई भी इल ट्रीटमेंट, उनके साथ कोई भी किस्म की जो है क्रूएलिटी है वो ना हो. So that's it for today. Thank you so much.